हेलो। सुन लो क्या? नहीं। I request to admin kindly make Sanjay Agrawal sir as a co-host. And I welcome you for today investor awareness program with the theme India Invest Karo. And what is the need for this investor education initiative? क्या जरूरत है, क्योंकि आप सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही आप एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंस एज एन इन्वेस्टर? क्या एक इन्वेस्टर के रूप में आपको अपने ऊपर कभी गर्व महसूस होता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करके कुछ देश सेवा का काम भी कर रहे हैं, या केवल आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? यहाँ पर मैं एक आपको इंसाइट देना चाहता हूँ कि फर्ज कीजिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड,
तो यहाँ आप आप- अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इमेजिन करें कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करे, तो क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको दिखाई देंगे? Isn't it? ये आपको दिखाई नहीं देंगे। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Good morning, sir. I गुड am मॉर्निंग। Dr. V. Leita from Tamil Nadu, sir. I don't know Hindi, sir. What is the medium of ओके ओके language? ओके 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 ओके, थैंक यू। Okay. Okay. Thank you, sir. So what is your importance as an investor? So all this financial market depends on investors' money, survive on investor money. So you are very much important for the financial market because you are the key point or the center of this financial market. So without an investor, this financial market can't exist. So you are very much important. And what they do with your money? अब हम में से someone of us need money, so we take loan and fulfill our needs, financial needs. And through our investment, country will grow, the economy of the country boost, and the health of the financial market will boost with our investment only. So as an investor, we are very much important for the country. So being an investor, we have some rights. So what are our rights? What are our duties? So we'll discuss in this program and how to make our financial life healthy. So we'll discuss today, and I'm thankful to all the participants, those who have joined us for this today program. So I use mixed language, Hindi and English as well, because we have some participants from the North India, so those they are not familiar with English as well. So Lolita ma'am, so we use both the language. Sir, Okay. even a single alphabet in Hindi, sir. This Okay. is Okay. my So country. so if I'm possible, from so you South can. India. Okay. But I So, can understand English, sir. okay. Okay. No issue. We'll try Okay. to make it convenient for you also. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. So generally, what we do with our income, we have certain income in our life. So we meet out our expenses, and rest what we are having in our pocket, we call it saving. But if we want to strengthen our financial life, so our equation would change. First of all, we have our certain income. What is the change? We have to replace expenses with saving. First of all, we have set up our financial investment plan. And according to investment plan, we save first, then we meet out our expenses. So generally, what equations we are using right now, that first we meet out our expenses, then what is left in our hand, we called it saving. So saving is an essential part from our income. So we change this equation for making our financial life healthy. So first of all, we save first, then meet out our expenses. And there is one most important fundamental of economy which impact our savings is called inflation. And how are investor associated with inflation and how investor impacted with inflation. So we'll discuss here. So to understand the impact of inflation, I want to ask one question from the participants. For example, I'm asking that the rate of interest you are getting is 3% and the rate of inflation is 6%. So are you in profit or in loss? Loss, sir. Very good, ma'am. Yes, you are in loss. So how you understand this loss? For example, a commodity cost me ₹100 today. And with 6% inflation, the cost of this or the value of this commodity after 1 year is ₹106.
And if I have invested 100 rupees and with 3% rate of interest, the value of my 100 rupees after 1 year is 103 rupees. And if I want to buy the commodity after 1 year, so I have to put 3 rupees from my pocket. So that's my loss, because money is a power. And if you are a science guy, so you know the potential of power is decay with respect to time. The power of buying. So to remain the power of your money, so you have to check whether your return on your investment is less than the inflation or more than the inflation. If it is more than the inflation, then only you are in profit, otherwise you are in loss. So if we are putting our money in such a financial products where we are having nominal return, and if we deduct the inflation part out of it, so our real return is less than the actual return if we apply the tax liability on it, or it is almost zero. So we have to compare among the financial product available in front of you and what are the return they are giving you and what are the inflation part and what is the tax liability on it. And after doing this comparison, you have to select the right financial product for you, because right now the financial market is very much complex. And to find out the financial product for you, right financial product for you, is a difficult task. Now, I give you one example that what is the impact of inflation on your as an investor on you, and what wrong with just saving. Because if you just save, what is saving? Saving is just an accumulation of money. And if you accumulate your money, so you are not getting return on it. So to getting return on your saving, you have to invest it. And if you are not investing your money, so there is an impact of inflation on it. And what is that impact of inflation? For example, if you are having 1 lakh rupees in your hand and you kept in your locker or in your almirah, so if the rate of inflation is 6%, so here we apply the rule of 70. So if we divide 70 by rate of inflation, so what dividend we are having in that particular time, your savings become half. For example, if rate of inflation is 7%, and if we divide 70 by 7, so we'll have 10. So in 10 years, your saving, whatever you are having in your hand, become half. Means in counting, they remain same amount, but the purchase power of that particular saving is half. For example, if you may able to buy some commodity in rupees 50,000 right now, so after 10 years, you have to spend 1 lakh rupees on it. So that is the impact of inflation on your saving. So that is the purchase power, the decay of purchase power with respect to inflation on your saving. So that is the wrong with your saving. So don't be an accumulator of money. Be an investor of your money. How does inflation impact our life? Charanjit ji, please mute yourself. So if we talk about our household expenses, so as I told you, if you apply rule of 70, तो अगर आज हमारा कोई घर का खर्च 30,000 रुपए से चल रहा है, तो after 15 years we have to put 60,000 to maintain same expenses, same status. I'll say same. If we have 1 lakh rupees in our hand, so after 28 it's remain
35,000 rupees only. So that is the impact of inflation on our expenses as well as on our savings. So what safeguard we adopt to protect our money from inflation? So first and foremost thing, you start saving, and the earlier you start, the better. And we are the world best saver in the world because we start saving from our childhood only. And it's our legacy also. And try to convert your saving into investing as soon as possible and put money to work rather than keeping it idle. So by investing, you put your money to work and you work hard to earn money, make the money work hard for you and benefit from the power of compounding, because as early as you start, you have the more benefits of power of compounding. And be ready with your comprehensive financial plan. So what should we do? So convert your saving to investing. And what is the difference between saving and investing? Saving means we are sure it's trustworthy because we have our money in our hand. But while we are investing, we put our money into other hands. तो जब हम लोग अपने पैसे को दूसरे के हाथ में रखते हैं तो वहां से रिस्क शुरू हो जाता है. So we have to calculate about the risk and we must be aware about the risk, that how much risk is there while you are putting your money into other hands. So it's an art. So the assessing of this risk is an art. So that's why financial planning and investing is an important life skill. And create wealth at faster pace. And as soon as you start investing, so your wealth creation process will start. And you ensure your wealthy life. So now let's talk about investing. So now how to invest. So why it is important to invest? So there are two type of investor. One is conservative, or we can say three types of investor: conservative investors, moderate investor or balanced investor, and aggressive investors. What is the difference between these conservative or aggressive investors? Conservative investors are risk averters, sir. They never like to take risk. Good. Very good. And aggressive or risk takers, sir. They Good. never bother about the risk. And the balances, they are balancing both the risk as well as the return. They are Okay. moderate, in other words. Good. Good. Very good answer, ma'am. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. So conservative investors, those who don't want to take risk. So as soon as we get older, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, we are in 20s, we may be an aggressive investor. That is, we invest aggressively, and as soon as we reach up to the age of 50, so we must become conservative because we need money for later on stages, because we get older and we have some responsibilities, financial responsibilities after 50s. So for that purpose, we must be conservative because we can't take risk on our investments. So we can say that from 20 to 40 is your wealth accumulation phase, and from 30 to 50 it's a wealth preservation phase, and
after 50 is a wealth distribution phase, where you use your wealth for your healthy retirement life. So why should we invest? So there must be some goal, some objective. So someone invests for their educational aspiration for their child. Then essential requirements like someone want to buy a house, any gadgets, electronic gadgets. Family aspirations are there, or luxury aspirations are there, or retirement. So rest is things you may ignore, but don't ignore your retirement. Because life expectancy in India is nowadays is near about 78 years. And if you get retired at the age of 60, so you have to live next 18 to 25 years. And in that particular period, there is your income is half or no income is there. And you totally depend on your investments. And here I say that your investment is your third child. Why I'm saying third child? Because we have a concept in our society that hum do, hamare do. So we have two children for our old age, but I'm not sure about your two children, but I'm sure about your third children. If your third children means if your investment is healthy, so your rest of two children will serve you in a better way. So that's why you must take care of your retirement and plan your retirement at the start of your career. So how should we invest? You have some short-term goals and long-term goals. If you want to buy a car, home, holiday, retirement, and education. So here I just want to quote one example that how you plan your investment. So most of you have seen see a scene of movie in which actor put 3 piggy banks in front of the god. तो उसने एक पिगी बैंक पे लिखा है माँ के इलाज के लिए, दूसरे पिगी बैंक पे लिखा है बहन की शादी के लिए, और तीसरे पिगी बैंक पे लिखा है, तीसरी गुल्लक पर लिखा है भाई की पढ़ाई के लिए. मीन्स उस व्यक्ति के सामने 3 फाइनेंशियल गोल है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं. उसको पैसा कमाना है, पैसा इकट्ठा करना है, एकुमुलेट करना है. क्यों करना है? उसको अपनी माँ का इलाज कराना है, बहन की शादी करनी है और भाई की पढ़ाई करवानी है. तो इसी तरह से यू हैव योर family goals, family liabilities, financial liabilities. So sit together with your family and discuss on it. What are your financial liabilities in near future? So, and with this brainstorming, you may have your financial liability and your financial plan ready in your hand. तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि माँ का इलाज कराना है तो कितने समय में कराना होगा. कि भाई डिजीज आइडेंटिफाई हो गई है, 6 महीने 1 साल का समय मिला है पैसा इकट्ठा करने के लिए. और बहन की शादी करनी है, 3 से 5 साल का टाइम है. भाई की पढ़ाई करानी है, 5 साल से ऊपर का टाइम है. तो मैं जो गोल हमें 1 साल के अंदर अंदर पूरे करने होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल. जो गोल हमें 1 से 3 साल में पूरे करने होते हैं वो उन्हें हम बोलते हैं मिड टर्म गोल. और जो गोल हमें 3 से अधिक सालों में पूरे करने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल. तो हर गोल के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट भी डिफरेंट है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसको आप हाई रिस्क प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. तो यू मस्ट बी कंजर्वेटिव फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स. और मिड टर्म गोल आप लोग मॉडरेट उसमें डाल सकते हो, और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप एग्रेसिव फंड चूज कर सकते हो.
तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आपका 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, 50 to 60 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आपका जो है शॉर्ट टर्म गोल वाली गुल्लक में जाएगा। 20 to 30 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन है इट्स गोज टू मॉडरेट गोल, और बैलेंस गोल वाली जो गुल्लक है उसमें जाएगा, एंड रेस्ट 20 रुपीज गोज टू लॉन्ग टर्म गोल। तो जो 20% का आपका कंट्रीब्यूशन है, ये जो बाकी 80% रिटर्न जनरेट करेंगे, ये 20% ऑलमोस्ट उसके आसपास आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। So that is how you prepare your financial plan. Now we'll discuss that what are the various options to invest. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें तो हमें कुछ चेकलिस्ट है उसको चेक करना चाहिए। फर्स्ट, क्या जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेशन के साथ फाइट कर पाने में सक्षम है कि नहीं है। शुड वी हेल्प टू फाइट विद इन्फ्लेशन। जब आपको पैसे की जरूरत है, क्या वो आपको इनकम दे पाने में सक्षम है कि नहीं है। बी एसेसेबल एंड यूजेबल इन पार्ट्स एंड पोर्शंस। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अगर कम पैसे की जरूरत है तो आपको 100% रिडम्पशन लेनी पड़ रही है। आप उसको पार्ट्स और प्रोपोर्शन में भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ग्रो इन वैल्यूज एंड एप्रिशिएट ओवर टाइम। समय के साथ उसमें कुछ एप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ वैल्यू उसकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। एंड बी रियलाइजेबल एट फेयर वैल्यू एंड लो कॉस्ट। तो जो हमारी जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर कुछ कॉस्ट लगती है, तो कॉस्ट का भी आपको कंपैरिजन करना चाहिए। तो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको ढूंढना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि जब हम रिडम्पशन करेंगे तो हमको एक फेयर वैल्यू वो रियलाइज हो रहा है या कोई हिडन कॉस्ट भी अप्लाई हो रही है। सो दीज आर द सम चेक पॉइंट्स यू हैव टू चेक व्हाइल यू आर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। और जब आप एसेट एलोकेशन करें तो आपके एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको जैसे फूड से फुल 100% न्यूट्रिशनल थाली आपकी होती है, उसी तरह से आपकी बैलेंस एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मीन्स उसमें कंजर्वेटिव प्रोडक्ट भी हो, मॉडरेट प्रोडक्ट भी हो, हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट भी हो। अब एसेट एलोकेशन शुड मैच योर फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसमें क्या है कि आप लोग के पास जो है इन्वेस्टमेंट दैट ग्रो इन वैल्यू, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनकी समय के साथ वैल्यू बढ़ती है। जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको मंथली या एनुअली कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ उसके प्राइस हाइक होते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है उनको हम लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, आपको कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करके कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है या कोई मंथली रिटर्न नहीं आ रहा है, लेकिन उसका प्राइस समय के साथ बढ़ता है। आर्ट कलेक्शन है, अब आर्ट कलेक्शन का ट्रेंड हमारे इंडिया में कम है, लेकिन आपने एक फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में सुना होगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आर्ट कलेक्शन में इन्वेस्ट करके, एंटिक्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मोनालिसा की वैल्यू है इस समय नियर अबाउट 430 करोड़ रुपीस, और जिस समय इनिशियली 72 करोड़ रुपीस में उसको बाय किया गया था। नंबर ऑफ ऑप्शंस होते रहते हैं और हर ऑप्शन में उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। इसी तरह से एंटिक्स की वैल्यूज है वो आपकी बढ़ती रहती है। तो वो भी एक ट्रेंड है, उसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स में भी आपको क्या होता है, रिटर्न नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। पैरेलली हमारे पास इनकम फंड्स होते हैं। इनकम फंड्स जो एक रेगुलर इनकम आपको देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट या जो कमिटमेंट आपके साथ हो रखा है, उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए जो आपको रेगुलर इनकम मिलती है, तो उसको हम लोग इनकम फंड्स बोलते हैं। तो जिसमें बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, पीपीएफ है, बैंक और कंपनी डिपॉजिट्स हैं।
इसमें हम अपने पैसे को एज अ प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसके अगेंस्ट में एक हमारा कमिटमेंट हो जाता है कि जो कंपनी है वो हमको इतना % रिटर्न देगी, और एक टेन्योर हमारा फिक्स हो जाता है, तो उस टेन्योर में वो हमारा रिटर्न मिलता है। तो इसमें एक हमें रेगुलर इनकम जनरेट होती है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करना, समझना जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना राइट एसेट्स अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और आजकल एक हमारे बीच में एक प्रोडक्ट ज्यादा ही फेमस है, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इसमें लोग जो हैं अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ अपने पैसे को पूल करते हैं। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर, दे पूल देयर मनी एंड हैंड इट ओवर टू अ फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर हमारे फंड के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दैट इज अ साइकिल ऑफ द म्यूचुअल फंड। और ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का एक जनरल परसेप्शन है कि केवल पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है। नहीं, ऐसा सही नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। ये जो पैसा है आपका अलग अलग सेक्टर्स में होता है। आपको गोल्ड फंड भी मिल जाएंगे जिसमें पैसा जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट होता है। आपको रियल एस्टेट फंड भी मिल जाएंगे, आपको बॉन्ड्स इनकम फंड्स भी मिल जाएंगे, जो पैसा आपका ट्रेजरी फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट एफडीज के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग हर तरह का म्यूचुअल फंड आप लोग ढूंढ सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव में जाना चाहते हैं तो देयर आर डेट फंड्स, और अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक उसमें जाना चाहते हो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं, और प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स भी होते हैं। अब इनकी क्या खासियत होती है? प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, क्योंकि इनको जो व्यक्ति मैनेज करता है वो क्वालिफाइड पर्सन है। 24/7 वो लोग मार्केट को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। लो कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, बहुत मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आप अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है, आपको आपके एक एक सिंगल पैनी विच यू हैव स्पेंड उसका स्टेटमेंट मिलती है। कन्वीनियंट है, एक बार आप शुरुआत करते हैं तो परपेचुअली वो चलता रहता है। इजिली लिक्विडेबल है, लिक्विडिटी इज वेरी हाई। जब आपको पैसा चाहिए आप कभी भी अपना रिडम्पशन प्लान कर सकते हैं, और विद इन 2-3 डेज जो है आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर कंपनी में करेंगे तो रिस्क 100% होगा, लेकिन यहाँ कंपनीज का एक बुके रहता है। तो उसमें अगर आपके 500 रुपये महीना जमा कर रहे हैं और फंड का कॉर्पस 500 करोड़ रुपीस का है, तो जिस पोर्शन में 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है उसी पोर्शन में आपके 500 रुपीस भी इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए रिस्क जो है डाइवर्सिफिकेशन की हेल्प से मिनिमाइज हो जाता है। and it's well regulated by Securities and Exchange Board of India. अब यहाँ पे जैसा भी मैं बात कर रहा था, हम लोग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज करते हैं। तो इक्विटी स्कीम्स हैं। इक्विटी स्कीम्स का मतलब क्या होगा? प्योरली इक्विटी सेक्टर के अंदर ये फंड्स साइफन इन होते हैं। डेट स्कीम्स हैं, इसमें इनकम ओरिएंटेड प्रोडक्ट में आपका पैसा लगता है जिसमें एक सर्टेन इनकम आपको मिलती है। हाइब्रिड फंड इज अ ब्लेंडेड प्रोडक्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट्स। इक्विटी एंड डेट्स के ब्लेंडेड प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपका पैसा इसमें लगता है। देन गोल ओरिएंटेड स्कीम, अगर आपने रिटायरमेंट या चिल्ड्रन बच्चों को लेकर के कोई लॉन्ग टर्म प्लान आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग गोल ओरिएंटेड स्कीम्स भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इंडेक्स फंड मीन्स जो निफ्टी और सेंसेक्स के वेरिएशन है उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इनटू द इंडेक्स फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, और फंड ऑफ फंड्स में कुछ फंड को मिला करके एक बुके बन जाता है, तो उसको भी अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो फंड ऑफ फंड्स में भी मीन्स मल्टीपल फंड्स में भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इक्विटी फंड की भी फर्दर कैटेगरी होती है, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग अपना प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। और अगर हम लोग डेट स्कीम की बात करें तो इसमें क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड है,
और क्रेडिट रिस्क फंड है। क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड और क्रेडिट रिस्क फंड में क्या अंतर होता है? क्रेडिट रिस्क फंड में जो लो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, एफडीज होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें हो सकता है कि आपका रिटर्न ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट ज्यादा होता है। और बैलेंस प्रोडक्ट की भी आपकी कैटेगरी होती है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो इसमें आपके पैसे का प्रोपोर्शन निश्चित हो जाता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 25% तक आपका पैसा जो है वो इक्विटी सेक्टर में जाता है, रेस्ट गोज टू डेट फंड्स। बैलेंस फंड में ये रेशियो 60-40 का हो जाता है। और एग्रेसिव फंड में आपका 100% एलोकेशन इक्विटी में हो सकता है या डेट फंड में हो सकता है, कुछ लोग 80-20 का भी रेशियो लेकर के चलते हैं। सो यू मस्ट चेक कि वे जिस फंड में या जिस सब कैटेगरी फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका क्या नॉमेनक्लेचर है और क्या उसका मैंडेट है। और म्यूचुअल फंड स्कीम विच वन टू बाय, अगर हम लोग हाई रिस्क जोन में जाना चाहते हैं तो हम लोग को इक्विटी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम लोग मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड स्कीम्स आर गुड। अगर हम लोग बिल्कुल कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो लो मॉडरेट रिटर्न या लो मॉडरेट रिस्क, तो यहाँ पर हमको डेट स्कीम्स अच्छी रहती हैं। और बहुत ही लोअर रिस्क में जाना चाहते हैं तो लोअर रिटर्न हमको मिलता है तो लिक्विड स्कीम्स आर देयर। लिक्विड स्कीम्स और सम काइंड ऑफ ओवरनाइट फंड्स आल्सो। तो जैसा आपका रिस्क होराइजन है उसके अकॉर्डिंग ही आपके रिटर्न भी वेरी करते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न, लो मॉडरेट रिस्क लो मॉडरेट रिटर्न, और वेरी लो रिस्क वेरी लो रिटर्न। तो जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन मैप योर गोल विद योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपका होराइजन शॉर्ट टर्म का है, वेरी शॉर्ट टर्म का है, तो मीन्स लेस देन 1 ईयर है, तो आप ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड के अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें इसकी हेल्प से एक अपना इमरजेंसी फंड का कॉर्पस आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर आप कुछ आपका होराइजन 1 से 3 साल का है तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न जो है आपका लिक्विड फंड से ज्यादा रहता है। और इसमें पॉसिबल गोल्स क्या हो सकते हैं? अगर आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं या बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे जो गोल्स हैं उसके लिए आप डेट फंड स्कीम्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज होराइजन इज शॉर्ट। अदरवाइज अगर आप वेकेशन पे 3 साल के बाद जाना चाहते हैं तो आप अदर प्रोडक्ट भी आप ढूंढ सकते हैं। और रेगुलरली वेकेशन पे जाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रेगुलर आप उस फंड से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं कि जो जो उनके नीड्स हैं, जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं उसके लिए वो अलग फंड ढूंढते हैं, और जो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं उसके लिए अलग फंड होते हैं। तो मीडियम टर्म 3 से 6 साल का है तो हाइब्रिड फंड में आप जा सकते हैं। जैसे अगर आप कोई कंज्यूमर गुड का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपका 6 से 10 साल का होराइजन है, बच्चों की एजुकेशन करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिटायरमेंट, बच्चों की शादी और वेल्थ टू नेक्स्ट जनरेशन, अगर आप एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं और आपका होराइजन 10 से अधिक सालों का है, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिटायरमेंट, यू मस्ट प्लान योर रिटायरमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर। तो आपके पास अगर आप 25 साल में अपना कैरियर शुरू करते हैं और 60 साल में आप रिटायर होना चाहते हैं, तो जो आपका वर्किंग लाइफ स्पॉन है दैट इज 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स में अगर आप किसी डाइवर्सिफाइड मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टरल म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा खासा कॉर्पस ये 35 सालों में आपको दिखाई देगा। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला तरीका है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है।
क्योंकि हम लोग एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। हम अपने बैंक को मैंडेट देते हैं कि भाई हर महीने मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, और हम लोग एक स्कीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और एक डेट को तय कर लेते हैं कि इस डेट को मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो उस पर्टिकुलर डेट पर आपके मैंडेट के अकॉर्डिंग उतना पैसा आपके सिमी अकाउंट से डिडक्ट होकर के आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट में एक कंटिन्यूटी लेकर के आता है। और इससे कंटिन्यूटी से क्या होगा? कंटिन्यूटी से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्दी होगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर आप 1,000 रुपये महीना पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, ये केवल एग्जांपल है कि आपको 1,000 रुपये जमा नहीं करना है। अगर आप अधिक कर सकते हैं तो अधिक कीजिए, अगर कम करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, और आपको 8% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। आपने अपना 25 साल की उम्र से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट 35 सालों में होगा वो लगभग 4,20,000 रुपये का होगा, और जो आपका 60 साल की उम्र में कॉर्पस बनेगा वो 23,09,175 रुपये का बनेगा। और अगर आप 30 साल से शुरुआत करते हैं तो आपके 3,60,000 रुपये जमा होंगे और आपका कॉर्पस 15 लाख रुपए का बनेगा। अगर आप 35 साल से शुरुआत करते हैं तो आपके 3 लाख रुपए जमा होंगे और कॉर्पस कितना होगा? 9,57,000 रुपये का होगा। और अगर आप 40 साल से शुरुआत करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 2,20,000 रुपये का होगा, लेकिन 5,92,000 रुपये की आपकी वैल्यू होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख रहे होंगे कि जितना लेट आप स्टार्ट करते हैं उतना आपकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। इन्वेस्टमेंट तो आपका 1,000 रुपये महीने का हो ही रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि जितना ज्यादा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को फलने फूलने के लिए देंगे उतना ज्यादा वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपने एक वो राजा और एक संत की कहानी भी सुनी होगी कि उसने राजा को कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए कि आप शतरंज के जितने खाने हैं पहले दिन एक दाना रखना, अगले दिन दो, उसका डबल कर देना, तीसरे दिन उसका डबल कर देना, दूसरे 64वें दिन जितना आपको मिलेगा उतना मुझे आप दान करें। तो 64वें दिन क्या हुआ कि उसके राज्य में अनाज की कमी पड़ गई। जो उसका मंत्री था वो सब परेशान थे। क्यों? क्योंकि जितना अनाज था सब इकट्ठा हो गया। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका पैसा डबल होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा लगता है रूल ऑफ 72। अगर हम लोग रिटर्न को, जैसे यहाँ 8% रिटर्न हमने दिखाया है, तो 72 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो मीन्स वी हैव 9 इन आवर हैंड। तो हर 9 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। जैसे अगर आज मेरे 1,000 रुपये हैं तो 9 साल में 1,000 रुपये कितने हो जाएंगे? 2,000 रुपये हो जाएंगे। 18 साल में कितने हो जाएंगे? 4,000 रुपये हो जाएंगे। 27 सालों में कितने हो जाएंगे? 8,000 रुपये हो जाएंगे। और 36 सालों में कितने हो जाएंगे? 16,000 रुपये हो जाएंगे। मीन्स जो आज मैंने 1,000 रुपये जमा किए हैं 36 ईयर्स के बाद वो 16,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसलिए जितना जल्दी हम लोग शुरुआत करते हैं उतना जल्दी हम लोग अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। तो दैट इज गेट द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सो यू मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। तो यही हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जितना जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी हम अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रेंथन करेंगे। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल है रोहित और मोहित के, जिन्होंने जो है, एक ने 20 साल की उम्र से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया और एक व्यक्ति ने, मोहित ने 10 साल लेट हो गया वो, उसने 30 साल की एज से स्टार्ट किया। तो उसके पास कितना है? नंबर ऑफ पीरियड कितना है? ईयर्स है उसके 40 ईयर्स है, उसके बाद 30 साल। अगर वो 60 साल पे अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं तो उसको 40 साल का समय मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, और उस दूसरे व्यक्ति को, मोहित को, 30 साल का समय मिल रहा है। तो वेरी ऑब्वियस है
कि किसके पास ज्यादा पैसा होगा, आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं किसके पास होगा। यू कैन गिव योर आंसर इनटू द चैट बॉक्स। जो लोग सुन रहे हैं वो बताएं कि रोहित के पास ज्यादा पैसा होगा, रोहित के पास 40 साल का समय है और मोहित के पास 30 साल का समय है, किसके पास ज्यादा फंड होगा आफ्टर 60? वेरी गुड, साक्षी कुमारी जी कह रही है रोहित के पास ज्यादा होगा, वेरी गुड। तो बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि रोहित, क्योंकि उसको ज्यादा समय मिल रहा है अपने फंड को ग्रो कराने के लिए। संजय अग्रवाल जी भी रोहित को कह रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोहित के पास 48 लाख रुपीज है और जबकि मोहित के पास जो है वो 36 लाख रुपीज है जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। लेकिन उनका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना हो गया है? 3.24 करोड़ रुपीज का हो गया और मोहित का रिटायरमेंट कॉर्पस कितना है? उसका लगभग आधे से भी कम है, दैट इज 1.41 करोड़ रुपीज। तो ये बेनिफिट लेने के लिए आपको जल्दी शुरुआत करनी पड़ेगी। एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि आप अगर कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक लमसम अमाउंट किसी डेट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से ये डेट फंड, ये जो एज पर योर चॉइस जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मंथली मोड पर जितना पैसा आपको चाहिए वहां से आप रिडम्पशन ले सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप मंथली इनकम स्कीम्स होती हैं उसी तरह से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। आपका पैसा जो है वो ग्रो करता रहता है और मंथली मोड पर या रेगुलरली जितना भी जो भी फ्रिक्वेंसी आपको चाहिए उस फ्रिक्वेंसी पे वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है और ये एक तरह से आपकी रेगुलर सैलरी की तरह से काम करता है। नाउ हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो 3 स्टेप्स हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट, सबसे पहले हमें क्या कराना होता है? केवाईसी करानी होती है। हमारे पास एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और उसके बाद केवाईसी की हमें फॉर्मेलिटी करनी होती है और एक केवाईसी पूरे लाइफ टाइम में हम लोग एक बार करते हैं। और केवाईसी कराने का क्या तरीका है? आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल वगैरह होता है। आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और कंप्लीटेड आईवी आप फोटोग्राफ लगा करके या तो फिजिकली सबमिट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप अपनी केवाईसी करा सकते हैं। Sir, just to interrupt you, we have the poll of KYC also. So I request to the admin kindly give the poll. ओके, तो एक पोल है, वो पोल में आप अपनी आंसर करें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिप? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की फुल फॉर्म क्या है? ऑल द पार्टिसिपेंट प्लीज आंसर। Do fast, participant. So we'll understand that how you are serious and enthusiastic for this session to understand the things. There are 88 participants. Please submit your responses as fast as you can. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। This shows, this reflect your seriousness about your financial life.
अभी 25 रिस्पॉन्सेस आ गए हैं, बाकी रेस्ट प्लीज डू इट फास्ट. Only 25 participant has already given the poll. I request to all the participant kindly involve yourself, include yourself, understand the things. अगर This किसी program को is initiative of SEBI to understand you for the financial planning, and the best effort part is that Dr. Sanjay Agarwal sir is a professional trainer and is conducting this program. Is a great thing for all of us. thank you very much, Pankaj ji. So I request to all kindly be participative, be energetic, and authenticated your participation, please. Sir, I think you please proceed. Okay, thank you. So poll is on. So you may give your opinion. मैं फिर भेज थोड़ा देखो वो अलग थोड़ा. Okay, so what is the mode of investing? There are two modes, physical mode and online mode. तो फिजिकल मोड में ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड रहता है, वो आज हम लोग सब लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो काफी कम लोग उसको लाइक करते हैं कि फिजिकली हम जाएं और अपना फॉर्म सबमिट करें और अपना इन्वेस्टमेंट फिजिकली करें. इट्स ऑनलाइन ओनली. तो एक बार हम लोग अपने बैंक को मैंडेट देते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं. नॉमिनी एंड कंप्लेंट रिड्यूसल, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट का, इसको हम लोग अच्छे से समझ लें. तो नॉमिनेशन क्या होता है कि भाई जिस हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमारा और हमारी फैमिली का राइट बनता है. लेकिन इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ, अगर हमने अपने इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी को नॉमिनेट नहीं किया है तो रिडम्पशन प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाता है. उसमें जो आपके सक्सेसर्स हैं उनको अपना सक्सेशन प्रूव करना पड़ता है और ये पूरा एक लीगल प्रोसेस है. इसमें पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है. तो आप अपने सक्सेसर्स को अगर इस प्रॉब्लम से या इस प्रोसेस से बचाना चाहते हैं तो जहां कहीं भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें वहां पे नॉमिनेशन जरूर फाइल करें. ये नॉमिनेशन ये नहीं कि एक बार आपने किया तो फिक्स हो जाता है, आप इसको कभी भी चेंज भी कर सकते हैं. और विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022 हर इन्वेस्टर के लिए मैंडेटरी है म्यूचुअल फंड के अंदर कि वो नॉमिनेशन रजिस्टर करें. अदरवाइज आप देखते होंगे कि बहुत सारा अभी ऐसा लगभग 60,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसा है जो विदाउट नॉमिनेशन अनक्लेम्ड पड़ा है. तो जिस पर्पज के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो पर्पज डिफीट हो जाता है अगर आप अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं करते. So it's an important part of your financial journey. So you must file your nomination in your all of your investments. Then complaint redressal mechanism. अब आप कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो you put your money in other hands. So there might be some breach of trust, some complications, some misunderstandings. तो वहाँ उस केस में आप लोग म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी के एएमसी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सो दे हैव टू हैव देयर इन्वेस्टमेंट रिलेशन ऑफिसर. आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं. और जब आपने ग्रीवेंसेस रेज करें तो अपना नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर उसमें दें. जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो जरूर उनके पास भेजें.
और वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पर आपको रेमेडी देते हैं। अगर उस रेमेडी से आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसका फर्दर प्रोसेस क्या है कि आप सेबी का स्कोर पोर्टल है, वहां पर भी जाकर के अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये टाइम बाउंड होता है, विद इन 30 डेज आपको अपनी ग्रीवेंसेस का सोल्यूशन मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इसको, और ये जो सिस्टम है ये आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी मिसहैप होगा सो देयर आर समवन जो हमारी बात सुनेगा। तो पीपल आर देयर। तो ये जो कंप्लेंट रिड्यूसल मैकेनिज्म है, इसकी वजह से एक इन्वेस्टर के बीच में एक भरोसा आता है। तो इसको भी आप, अगर आपके साथ कोई भी मिसहैप हुआ है, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस है उसको आप रेज कर सकते हैं। So there is a disclaimer or an investor education and awareness initiative by UTI Mutual Fund. The information contained in this document is compiled from third party and publicly available sources, and it's included for journal information purpose only. There can be no assurance or guarantee on the yields. Views expressed by the fund manager cannot be constituted to be decision to invest. The statement contained herein are based on current views and involve known and unknown risk and uncertainties. While its UTI mutual fund shall have no responsibility, liability whatsoever for the accuracy or any use or reliance thereof of such information. The AMC, its associate or sponsor or group companies, its directors or employees accepts no liability for any loss or damages of any kind resulting out of the use of this document. The recipients, before acting on any information herein, should make their own investigation and seek appropriate professional advice, and shall alone be fully responsible, liable for any decision taken on the basis of information contained herein. Any reliance on the accuracy or use of such information shall be done only after consultation of the financial consultant. To understand the specific legal, tax, or financial implications, all mutual fund investors have to go through a one-time KYC process. Investors should deal only with the registered mutual fund. For further information on KYC, RMF, and procedure to log a complaint in case of any grievances, you may refer to the knowledge section available on the website of UTI Mutual Funds. और आप म्यूचुअल फंड सही है करके वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो एक डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर भी आपको एक भरोसा देता है कि इन्वेस्टमेंट्स, ऑल इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क इज देयर, तो उन रिस्क को आपने समझ लिया। जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ते हैं, मीन्स यू अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उस प्रोडक्ट के साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो आपको समझना चाहिए, और हर प्रोडक्ट के साथ रिस्क है। नो प्रोडक्ट इज रिस्क फ्री। और वो रिस्क जो है, वो एपेटाइट, उसको झेलने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है, उसको मैप करके आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ की कामना करता हूं कि आप अपना जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रेंथन करें। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू ऑल आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेरीज हैं आप अपनी रेज कर सकते हैं। तो जहां तक मेरी नॉलेज है मैं उसको सेटल करने का प्रयास करूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार सुनील प्रसाद जी, बोलिए। सर एक्चुअली जैसे मुझे अपने ब्रदर है, उनकी एज अभी 24 है, उनका SIP कराना है। तो जैसे मुझे अपने एंड से करना है,
तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके ब्रदर का बैंक अकाउंट होना चाहिए, केवाईसी पैन कार्ड होना चाहिए और केवाईसी प्रोसेस होना चाहिए। तो केवाईसी प्रोसेस होने के बाद वो अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसको I request to admin kindly float the second poll. Sorry, Sanjay sir, it's a protocol to. No, please, sorry. Please continue with the question raised by. ओके, तो संजय एक सेकंड पोल संजय- आपके बीच में आ रहा है, आप उसमें भी अपना रिस्पॉन्स सबमिट करें। संजय सर, हाँ, यस प्लीज, यस संदीप जी। संदीप दिस साइड। हम्म। सर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया और यूटीआई म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे मैं आपको थैंक्स बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा आपने बहुत धन्यवाद। बहुत ही इजी वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन किया। हमेशा आज तक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम लिए ही हैं, पहली बार सुनने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा सर। और कुछ चीजें बोलूंगा सर, ये मुझे लगता है कि 781 इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंप करना और लगभग 10,000 लोगों को आपने एजुकेट किया है सर, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं आपकी तारीफ में और क्या बोलूं सर। बहुत तो धन्यवाद संदीप जी, आप उपस्थित रहे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात यही है। सर एक और चीज बोल रहा था, जिनको भी इश्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो मैंने मेरा चैट बॉक्स में मैंने मेरा एड्रेस मैसेज कर दिया है। यूटीआई म्यूचुअल फंड की लोकल ब्रांच में वो विजिट कर सकते हैं और मैं मेरा नंबर भी अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। मैं संदीप पवार, सीनियर एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट यूटीआई म्यूचुअल फंड। मैं मेरा नंबर भी डाल देता हूँ। जिनको भी इश्यूज हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो वो लोकल जयपुर में मुझे फोन कर सकते हैं। तो मैं संजय सर के बिहाफ पे वो सारी क्वेरीज सॉल्व, आपकी जो भी है क्वेरीज वो देख लूंगा और इन्वेस्टमेंट में आप सबको असिस्ट करूंगा। तो मैं मेरा चैट बॉक्स में आपको नंबर डाल देता हूँ, तो प्लीज नोट इट डाउन। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। Thank you Sandeep ji, for kind for word. your sharing of the contact number, which has helped the people next when the session has finished. But I request to all kindly fill the poll, and meanwhile you can ask the questions. Sandeep Pawar sir and Sanjay Agarwal sir, Dr. Sanjay Agarwal sir, I'm mistaken. Yes, Both are yes. there to answer the queries because that Yes, sir. helps you to other people also. So I request to all, आपकी जो भी queries हैं, संदीप पवार जी जो कि मेरी यूटीआई की टीम से हैं और डॉक्टर संजय अग्रवाल सर जो कि आज के हमारे ट्रेनर हैं, वो दोनों ही आपको सवालों के जवाब देंगे। तो आप अपने सवाल हिंदी या इंग्लिश में अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट पे डाल करके पूछ सकते हैं। मीनवाइल ये पोल आ गया है, इसको भी आप प्लीज फिल कर दें। फॉर फर्दर क्वेरीज अगर किसी का कोई सवाल हो तो संदीप पवार जी ने अपना नंबर डाल दिया है 9934361021। आई रिपीट 9934361021। आप इनसे बाद में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि संजय अग्रवाल सर जो कि मेरे साथ में है, जो कि आज के इस सेशन के ट्रेनर थे, और संदीप पवार जी जो कि मेरी यूटीआई की टीम से है, और दोनों ही इस समय हैं, तो आप दोनों से सवाल पूछ सकते हैं। तारा, आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। Sir, I want to ask, as a new investors, if I want to plan, what is the initial procedure for investing? संदीप जी आप आंसर करेंगे? संदीप जी। यस सर। या बहुत ही सर ने ये चीज पहले ही एक्सप्लेन की है। बेसिकली हमको जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो पहले हमको एक केवाईसी के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो केवाईसी बेसिकली कुछ नहीं है, एक फॉर्म है जिसमें आपको अपना फोटो, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड अटैच करना होगा और अपना नियरेस्ट कोई भी म्यूचुअल फंड ऑफिस में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप मुझे बुला सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके नियरेस्ट कोई सा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बेसिकली पहला प्रोसेस होगा कि आपको केवाईसी के प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। नंबर 2, जब केवाईसी आपका हो जाएगा उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एक चेक देना होगा, और अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आप ऑनलाइन जाके आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग
और या फिर अपने डेबिट कार्ड या फिर अपने यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये So बेसिकली प्रोसेसिंग है। one more question I want to ask, no? यस सर, यस सर। हाँ बोलो बोलिए। Sir, as a like new investors, which option is better for me? Where I have to invest? वेयर टू इन्वेस्ट, Yes. क्वेश्चन इज दिस ना। हेलो Hello. बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, बेसिकली जब भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, नॉर्मली पहले पहले आपको ये देखना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी, मान लीजिए मैं 48 का हूँ और मुझे मान लीजिए 6 महीने में मेरी बेटी की शादी करनी है या कुछ करना है, तो बेसिकली आपको देखना होगा कि प्लानिंग क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है। तो जब भी आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको पूरा आपके बारे में जान के ही आपको बता पाऊंगा कि क्या आपको आप इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपको बोल दिया, संजय सर ने बोल दिया इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है। संजय सर भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, मेरा पर्पस क्या है। तो अपने जो भी गोल है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको किसी गोल से लिंक करना बहुत जरूरी है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको। संजय सर प्लीज। बिल्कुल, बहुत सही आपने आंसर किया। देखिए, जब तक आपका लक्ष्य नहीं है आप इन्वेस्टमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। Yes. तो तिवारी जी, आप अब सबसे पहले अपना एक लक्ष्य तय कीजिए कि आपको किस चीज के लिए इन्वेस्ट करना है, और फिर Okay, उसके sir. अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट आपको ढूंढने को मिलेगा। कि अगर फॉर एग्जांपल अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आपको 1 साल के बाद मोबाइल फोन ही खरीदना है, तो मोबाइल फोन की Yes. कॉस्ट से 20,000 रुपये होने वाली है, 50,000 रुपये होने वाली है। तो अगर आप अपना 50,000 रुपीज को 20 में डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग 2,500 रुपये आ जाएगा। Yes. और आप अपना रिटर्न के साथ उसे कैलकुलेट करेंगे और कुछ उसकी इन्फ्लेशन कॉस्ट भी होगी। तो अगर आप 2,500 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो 20 महीने के बाद आप मोबाइल ले पाने में सक्षम होंगे। तो इसी तरह से जो भी आपके गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हैं, तो आप किसी भी एग्रेसिव फंड में, जैसे मैंने कहा कि अभी आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आप अपने केवल रिटायरमेंट प्लान करने के हिसाब से जाना चाहते हैं, तो जो भी आपकी अपनी इनकम है, उस इनकम में से कितना आप सेव करना चाहते हैं, उसे किसी भी एग्रेसिव फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका रिटायरमेंट कितने अच्छे से गुजरता है। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। Yes, yes, yes. Thank you, sir. Okay, I thank you. request to all the participants, still there are 75 participants and we have got the feedback from 42 participants. I really thank you to the 42 participants and I request to all kindly fill the poll. तो आप ये पोल सबमिट करते रहे और पोल के बाद में फिर आपको इसका रिस्पांस भी मिलेगा। Poll has not come yet. क्या किसी को सेकंड पोल हैज नॉट कम येट? अरे साक्षी को। संजय सर, एक क्वेश्चन फ्लेक्सी कैप फंड पे भी है। Sir, second poll is the feedback and it is already floated. अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो जहां पे मोर का ऑप्शन है वहां पे 8वां ऑप्शन है पोल का, उसको क्लिक करेंगे तो वो पोल आपको दिखेगा। अगर कोई पार्टिसिपेंट नहीं कर पा रहा है तो मोर का ऑप्शन आपके सिस्टम पे आएगा जूम पे, और वहां पे मोर पे 8वां ऑप्शन है पोल का, पोल को क्लिक करेंगे तो खुला दिख जाएगा आपको, क्योंकि 42 लोग कर चुके हैं इसलिए पोल ऑलरेडी ओपन है। दिख रहा है पोल, आप जाकर देखेंगे तो उसमें। हाँ संदीप जी, आप कुछ फ्लेक्सी फंड के बारे में बताने वाले थे। सर, एक क्वेश्चन स्वाति यादव जी का है, वो क्वेश्चन पूछना है कि फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। तो मैं जवाब दूं सर या हाँ बिल्कुल आप दीजिए सर, प्लीज प्लीज। स्वाति जी, फ्लेक्सी कैप फंड वो होते हैं, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं, इंडिया के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। 101 से लेके 250 तक के स्टॉक है वो मिड कैप है, और उसके नीचे के जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप है। तो फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो बेसिकली कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, उस पे कैप का कोई वो नहीं है, वो कैप बायस नहीं है। वो फ्लेक्सी कैप, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसलिए उसका नाम फ्लेक्सी कैप फंड है।
ओके स्वाति जी, ओके, एनी मोर क्वेश्चन? तो मेरी ओर से आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज इस प्रोग्राम को सफल बनाया अपनी उपस्थिति से। और सभी अभी पोल ऑन है, सभी अपना रिस्पांस जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें। सर एक चीज लास्ट में, एक चीज ऐड करूंगा मैं। हाँ प्लीज। नॉर्मली जब भी हम लोगों ने ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ तो मैं लास्ट में एक चीज जरूर बोलता हूँ, या मेरा मतलब रिक्वेस्ट रहता है आप सबसे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे, कि नॉर्मली आपने शारदा स्कैम देखा होगा या आपने इस तरह के जो स्कैम देखे होंगे जहाँ पे आपको मार्केट में लगता है कि यार 17-18% फिक्स्ड आपको रिटर्न मिल रहे हैं। इस तरह की जो मार्केट में बात आती है, जो चिट फंड कंपनीज बेसिकली होती है, तो हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करें किसी जानकारी के थ्रू करें। ऐसे नहीं कि आपको भाई 17% 18% का रिटर्न कोई दिखा रहा है और आप कर दें। मैंने बहुत सारी सुसाइड केसेस देखे हैं इन्वेस्टर के केसेस में। आप शारदा स्कैम देखा है मैंने, एयू में भी काफी लोगों का पैसा गया है। तो मैं नॉर्मली लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, अच्छी जानकारी के साथ करें, नॉलेज लें। कुछ भी डाउट हो आप एक्सपर्ट से बात करें। और ये जो स्वतंत्र हमने इनिशिएटिव लाए थे, उसका पर्पस भी हमारा यही था कि हम लोगों तक, एक एक आदमी तक पहुंच सके, एक एक इन्वेस्टर तक पहुंच सके, उसको अवेयर कर सकें कि भैया आपको इन्वेस्ट करना कहाँ है। तो पर्पस ये है कि इन्वेस्ट करना कहाँ है और कहाँ इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। तो बेसिकली ये जो संजय सर ने बताया है, बात सारी चीजें डिस्कस की सर ने, उसका पर्पस यही है कि आप बहुत सोच समझ के अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको इन्वेस्ट करें। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जहां भी पैसा लगाएं, बहुत सोच समझ कर लगाएं और बहुत ही एक्सपर्ट की मदद लें। उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो संजय सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन लिया। और थैंक यू। तो मैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के ब्याह पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू संदीप जी, और मुझे मौका देने के लिए यूटीआई म्यूचुअल फंड का बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज के इस सेशन के लिए ट्रेनर चुना। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद कि जो उनकी उम्मीदें थी मैंने उस पर खरा उतरने का प्रयास किया है। अब कितना उतर पाया हूँ वो तो आपको पता होगा, लेकिन आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, all the participants. Thank you, Dr. Sanjay Agrawal, sir. And thank you, venue coordinator, for coordinating this program. And thank you, admin, for helping me others. Thank you all. Thank you so much, Sanjay sir. Thank you so थैंक much, यू। Pankaj sir. थैंक यू। थैंक Thank यू। you so much, Sandeep sir, and thank you so much, all participants. Thank you so much. थैंक यू परिवर्तन लर्निंग Thank you. सॉल्यूशंस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Agarwal sir. थैंक यू। थैंक यू संजय जी। संजय अग्रवाल जी हैं, तो आपको कैसा लगा सेशन सर? जी बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक है। ओके। मैंने कॉल कर दिया सर। Thank you all. I request to admin kindly